Good morning, dear students. Dear students, today we are going to discuss a new topic. The topic name is parallel lines and a transversal line. How can we define a parallel line? I have told you about this value, and today we are going to discuss the relation between parallel lines and a transversal. Is it clear? Now let us consider we have two lines in a plane L and M. These are the two lines, and we draw a line. This line N is called transversal line. This line N is called transversal line. See here, between two lines L and M, suppose that these two lines are not parallel to each other, and the interior part of this line LM is this. This is interior part, and this is exterior part. It is also exterior part. Now see here, line N cut line L and M, two distinct points. Suppose that this is point P and this is point Q. In this case, how many types are angles formed here? See here, this line N cut this line L at point P. There are four angles are formed here. Suppose that this is angle first, second, third and fourth. Just same like on this line M, line N cut at a point Q. Here see the angle 5, 6, 7 and 8. These are the angles are formed here. Dear students, I have told you about vertically opposite angles. And vertically opposite angles are always equal to each other. See here, angle 1 and angle 3 are vertically opposite angle, so these two are equal. 2 and 4 are also equal. Just same like 5 and 8 are equal. 6 and 7 are equal. These are the points we know. Dear students, let us try to understand the exterior angle and interior angle, corresponding angle, exterior angle and interior angle, corresponding angle and alternate angles. Okay. Now, dear students, first we want to find exterior and interior angle between these two lines and with the transversal line. The exterior angle are 1, 2, 8, 7. Angle 1, angle 2, angle 7 and angle 8. Interior angle, the angle which lies in interior part, that angle is known as interior angle. Now interior angles are 3, 4, 5, 6. Angle 3, angle 4, angle 5 and angle 6. Is it clear? Now
We consider about corresponding angles. Corresponding angles. Corresponding angles. First, we want to define the definition of corresponding angles. What is the means of corresponding? करेस्पॉन्डेंस का मीनिंग क्या होता है? इन जनरल हम करेस्पॉन्डिंग कब यूज करते हैं? जब टू थिंग्स एक दूसरे के पैरेलल हों, जैसा वो बिहेव कर रहा हो वैसा वो भी बिहेव कर रहा हो, दोनों एक दूसरे के करेस्पॉन्डेंस तभी कहे जाते हैं। बिहेवियर दोनों का सेम हो। जैसे मैं अगर यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और मेरे ही साथ कोई दूसरे क्लास में पढ़ा रहा होगा, तो हम दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग में चलेंगे, एक दूसरे के करेस्पॉन्डेंस होते हैं। ऐसे यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग का क्या मतलब हो? करेस्पॉन्डेंस का यहाँ पर मीनिंग क्या होता है समझिए। ये देखिए ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ट्रांसवर्सल लाइन जो है L और M को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट किया है। जब इसने टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट किया तो इसके राइट साइड बना और इसके लेफ़्ट साइड बना। ठीक, इसके राइट साइड और इसके लेफ़्ट साइड देखिए कुछ एंगल्स बने हुए हैं ना। जैसे जब ये लाइन आपकी कट किया है L और M को, तो देखिए यहाँ पर राइट साइड में इसके नीचे, इस लाइन के नीचे जो है 2, 3, 4, 5, 7 ये एंगल्स बने हैं। और इसके लेफ़्ट साइड में इस लाइन L के लेफ़्ट साइड में क्या है 1, 4, 6, 8 ये एंगल्स बने हुए हैं। अब इसमें किसे हम करेस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे? अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इस लाइन L के एबव में, इस लाइन M के एबव में, इस लाइन L के एबव में और इस लाइन N के एबव में कौन कौन से एंगल हैं? 2 और 5। ऐसे विलो में क्या है, लाइन L के विलो में 3 है और लाइन M के विलो में क्या है 7 है। तो यहाँ पर देखिए 2 5 के करेस्पॉन्डिंग हो जाएगा, 3 7 के करेस्पॉन्डेंस में हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 1 6 के करेस्पॉन्डेंस में हो जाएगा और 4 8 के करेस्पॉन्डेंस में हो जाएगा। ठीक है, लेट अस राइट दीज पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 2 एंगल 5 के करेस्पॉन्डेंस में है, एंगल 3 एंगल 7 के करेस्पॉन्डेंस में है, एंगल 1 एंगल 6 के करेस्पॉन्डेंस में है और एंगल 4 जो है आपका एंगल 8 के करेस्पॉन्डेंस में है। इज इट क्लियर? ये तो हो गया आपका करेस्पॉन्डिंग एंगल। नाउ लेट अस कंसीडर अबाउट अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल में देखिए हमने जो वैल्यू डिफाइन किया है एंगल की, यहाँ पर हमने कोई एक्सटीरियर इंटीरियर का मैटर नहीं यहाँ पर इंक्लूड किया कि एक्सटीरियर करेस्पॉन्डेंस में है कि इंटीरियर करेस्पॉन्डेंस में है, ये यहाँ पर वैल्यू हमने नहीं डिफाइन किया। बट इन अल्टरनेट एंगल्स, इन द केस ऑफ अल्टरनेट एंगल्स वी कंसीडर exterior alternate angles and interior alternate angles. The angles which lies in exterior part, the angle which lies in the exterior part of the given parallel lines, is known as exterior angle, and the angle which lies in interior part of the given two lines is called interior angles. ये तो है exterior और interior की वजह। यहाँ पर हमें अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? चेंज होना, अल्टर करना। अल्टर कैसे करेगा? अब यहाँ पर आप थिंक करिए, सपोज करिए ऐसे, ये जो होगा ये इस साइड में है तो दूसरा किस साइड में है? इस साइड में है। अगर ये
कोई भी एंगल जो आपकी लाइन है उसके एक एबव में हो, एक बिलो में हो, तो एक एबव में एक बिलो में होगा तो उनको क्या कहेंगे हम? अल्टरनेट एंगल्स कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे हम? अल्टरनेट एंगल्स कहेंगे। और जो एक ही साइड में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। तो ये एक जो है इस लाइन के एबव में होगा तो एक इस लाइन के बिलो में होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? अल्टरनेट एंगल्स कहेंगे। अब यहाँ पर जैसे सपोज करिए यहाँ पर 4 और 5 ये बना है ना, 4 इस ट्रांसवर्सल लाइन के एबव में है और ये क्या है? बिलो में है, तो ये दोनों क्या हैं? अल्टरनेट है। अल्टरनेट है तो ये दोनों एंगल्स क्या हैं? अल्टरनेट एंगल्स हैं। बट वी वांट टू डिफाइन हियर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स एंड इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स एंड इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट का मीनिंग आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब हम एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स देखेंगे। अब एक्सटीरियर पार्ट में देखिए ये एबव में है, एक्सटीरियर पार्ट में ये देखो 1 है और एक्सटीरियर पार्ट में आपका यहाँ पर 7 है। तो ये जो 7 1 के एक्सटीरियर में है तो ये इस लाइन के इस साइड में है और ये इस लाइन के इस साइड, मतलब ये लेफ़्ट साइड में है, राइट साइड में है, या ये एबव है तो ये बिलो में है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। मीन्स 1 7 के हो जाएगा, 2 8 के एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। जब भी हम लिखेंगे उन्हें हम पेयर में लिखते हैं, जैसे 1 7 के हैं, 1 7 2 8 2 8 के हो जाएगा एक्सटीरियर अल्टरनेट में। ऐसे इंटीरियर अल्टरनेट अगर हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे तो क्या होगा? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अब इंटीरियर पार्ट में देखिए, ये इंटीरियर पार्ट है, यहाँ देखिए ये ऐसे आप ट्रिक में भी जेड बना दो, जेड बनाने के बाद जो इस साइड में होगा और जो इस साइड में होगा दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल्स होंगे। 4 5 और ये क्या है? 3 6। तो ये आपका 3 6 और 4 5 का आपका पेयर बन जाता है। ये आपके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं। नाउ लेट अस डिफाइन को इंटीरियर एंगल्स एंड सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स किसे हम कहते हैं? इसी को हम एलाइड भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम? एलाइड भी बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, इन्हीं को हम एलाइड भी बोलते हैं, इन्हीं को हम जो है कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। किन्हें? अब ये देखिए ये लाइन आपके पास जो है ये ट्रांसवर्सल एक है ना, ये ट्रांसवर्सल लाइन आपकी एन है। इस ट्रांसवर्सल लाइन एन के इस साइड में देखिए इंटीरियर पार्ट में आप आ जाइए। इंटीरियर पार्ट में आप देखेंगे एंगल 3 एंगल 5 दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, मीन्स इसी लाइन पर दोनों एंगल्स बने हुए हैं। ठीक, तो ये दोनों एंगल्स इसी लाइन पर बने हुए हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे? को इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। ऐसे 4 जो होगा वह क्या होगा? 6 के होगा को इंटीरियर में। इट मीन्स द पेयर ऑफ एंगल 3 and 5 इज कॉल्ड द पेयर ऑफ एंगल 3 and एंगल 5 and एंगल 4 and एंगल 6 are called को-इंटीरियर एंगल्स। को-इंटीरियर एंगल्स, ये तो मीनिंग हो गई। इन्हें हम क्या कहते हैं? ये वैल्यू हम यहाँ पर डिफाइन कर दी। इन्हें हम क्या कहेंगे? को-इंटीरियर एंगल्स, या इन्हें हम क्या कहेंगे? कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स, कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, या इन्हीं को हम कहते हैं एलाइड। इन्हीं को क्या कहते हैं हम? एलाइड भी बोलते हैं।
तो ये इसकी नेमिंग है, एक ही आदमी के कई नेम हैं, वही यहाँ पर भी डिफाइन है, इनको हम क्या कह सकते हैं। ठीक, तो ये जो वैल्यू हमने यहाँ पर डिफाइन किया, हमने एल और एम और एन को लाइंस कंसीडर किया है। जहाँ पर एल और एन मैंने पैरेलल की कंडीशन डिफाइन नहीं किया। अब यहाँ पर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, सपोज करिए ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। अब यहाँ पर मैं पैरेलल की कंडीशन डिफाइन कर रहा हूँ। ये दोनों लाइन एल और एम एक दूसरे के पैरेलल में हैं, और ये आपका लाइन जो एन है ये ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। इन दिस केस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इन दिस केस एक्सटीरियर और इंटीरियर जो पार्ट बनता है, इसमें कुछ कंडीशंस जो मैंने अभी एंगल्स की आपको डिफ़ाइन करवाया, डिफिनीशन यहाँ पर मैंने डिफ़ाइन किया, क्या कंडीशन यहाँ पर जनरलाइज होती है उसे यहाँ पर आप समझिए। एंगल जो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं, जो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं, जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जो कोई इंटीरियर एंगल्स हैं, इनमें क्या रिलेशन है, कुछ रिलेशन होगा ना, तो कुछ रिलेशन होगा, वह रिलेशन कैसा है इसे अब हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने बता ही दिया है, प्रूफ भी किया है। अब उसी के बेसिस पर जो है हम यहाँ पर सारी वैल्यू डिफाइन कर देंगे आपकी। अब देखिए यहाँ पर एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ऐसे 5 8 के इक्वल हैं, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ऐसे क्या है 6 7 के इक्वल है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक, नाउ सी हियर, यहाँ पर देखिए आप, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अगर हम इन सब का सम करें तो जाहिर सी बात है, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 360 बनेगा। क्यों, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 करेंगे तो 360 बनेगा। अगर हम एंगल 1 एंगल 2 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 180 मिलेगा। लीनियर पेयर की कंडीशन जनरेट हो जाएगी वहाँ पर। किसकी कंडीशन वहाँ पर जनरेट हो जाएगी, लीनियर पेयर की वहाँ पर कंडीशन आपकी जनरेट हो जाती है। अब ये लीनियर पेयर की अगर यहाँ पर कंडीशन हम जनरेट कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में कुछ चीज़ें तो हमें इक्वल भी मिलेंगी, कुछ हमें नॉन इक्वल मिलेंगी, कुछ इक्वल होंगी, कुछ इक्वल नहीं होंगी। अब जैसे यहाँ पर देखिए, जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, जो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये दोनों लाइन अगर आपकी पैरेलल हैं, लाइन दोनों आपकी क्या हैं, अगर एल एम के पैरेलल में है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इट मीन्स एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इफ लाइन L and M are parallel and this is a transversal line. In this case corresponding angles are equal. corresponding angles क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी का कन्वर्स अगर हम कंसीडर करें, if corresponding angles are equal then the given two lines are parallel to each other. अगर corresponding angles equal हैं तो जो parallel lines आपको given रहती हैं, जो lines आपको given हैं वो क्या होंगी, एक दूसरे के parallel में होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि corresponding angles को कैसे हम प्रूफ करें कि ये इक्वल हैं। corresponding angles
हमारे इक्वल होते हैं, हमने कहा इसे कैसे हम प्रूफ करेंगे, कैसे हम प्रूफ करें कि ये दोनों एंगल्स जो हैं इक्वल हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये कैसे इक्वल हैं, इसे प्रूफ करना पड़ेगा। तो आप रूलर ले लीजिए, अपना रूलर ले लीजिए, उस रूलर को इस पैरेलल लाइन पर रख दीजिए, ठीक, इस लाइन पर रखिए और रूलर, अब जब रूलर को आप यहाँ पर पुट करोगे और आप अपना लेके आइए प्रोटेक्टर को यहाँ पर रख दीजिए, रूलर को ऐसे रखिए और प्रोटेक्टर को यहाँ पर रखिए। देखिए इस एंगल को देखिए, ऐसे ही यहाँ पर इस एंगल को देखिए, तो देखोगे दोनों एंगल क्या निकलेंगे, सेम निकलेंगे, दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होते हैं। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होते हैं, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही अल्टरनेट को अगर आप डिफाइन करना चाहोगे, अल्टरनेट एंगल्स कैसे इक्वल होंगे। अब आपके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए हैं, जब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो ये दोनों एंगल अगर आप सम करोगे तो क्या होगा, इनका सम 180 होगा। ऐसे इन दोनों एंगल को भी ऐड करेंगे तो उनका सम क्या होगा, 180 होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये एंगल ये 1 जो है अगर 6 के इक्वल है, 1 6 के इक्वल है और 4 क्या होगा, 8 के इक्वल होगा करेस्पॉन्डिंग में। अब 1 जो है वह 7 के इक्वल होगा, कैसे होगा, 1 6 के इक्वल है और 6 7 के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि 6 7 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इट मीन्स 1 इज इक्वल टू 7। ये अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे एक्सटीरियर में इसका भी 2 भी 8 का हो जाएगा। इसे इंटीरियर में आ जाइए, इंटीरियर में आप देखिए ये 3 है और 6 3 6, ये दोनों कैसे इक्वल हैं, इसे कैसे हम समझेंगे। देखिए वो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। क्यों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। और एंगल 1 क्या है, एंगल 6 के भी तो इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 6 के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या निकला कि एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल होगा। ऐसे देखिए यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और एंगल 1 एंगल 3 के भी इक्वल हैं। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल 1 एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। इससे क्या रिजल्ट निकल सकता है, एंगल 6 एंगल 3 के इक्वल होगा। इससे यही तो कंक्लूजन निकला। यूक्लिड का जो एक्सम्स आपको बताया गया है उसमें क्या, अगर सेम थिंग किसी थिंग के इक्वल है और कोई अदर थिंग उसके भी इक्वल है, तो इससे क्या निकलता है रिजल्ट कि ये दोनों थिंग भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो ये दोनों एक दूसरे की इक्वल हो गई। सिमिलरली ऐसे ही एंगल 2 एंगल 5 की इक्वल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और एंगल 2 एंगल 4 की इक्वल है। क्यों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये 2 जो होगा 4 की इक्वल है और 2 5 की इक्वल है, जिसका मतलब 4 जो होगा वह 5 के इक्वल होगा, 4 जो होगा वह 5 के इक्वल होगा। तो ये वैल्यू यहाँ पर डिफाइन हो जाती है। अब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो हमने स्टेटमेंट आपको बताया विद प्रैक्टिकल आप देखोगे ये इक्वल होते हैं, ये आपका एग्जाम्स में कंसीडर किया जाएगा, एग्जाम्स में कंसीडर किया जाएगा, ठीक। और इसका अगर हम थ्योरम में कंसीडर करेंगे तो कैसे करेंगे, इफ़ 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इफ़ 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन alternate angles are equal, then alternate angles are equal. If 2 lines are parallel to each other, then the sum of 2 co-interior angles is 180 degree. Sum of 2 co-interior angles is 180 degree. कैसे होगा देखो, एंगल 3 एंगल 5
ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं और इनका सम हमने कहा कि 180 डिग्री होगा। क्यों होगा इसका भी प्रूफ आपके पास है। देखिए यहाँ पर एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल है ना, एंगल 3 क्या है, एंगल 1 के इक्वल है। एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 1 एंगल 2 दोनों ऐड होके किसे रिप्रेजेंट करते हैं, 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को अगर ऐड करोगे तो ये क्या होगा, लीनियर पेयर की कंडीशन डिफाइन करेगा और लीनियर पेयर की कंडीशन यहाँ पर डिफाइन हो रही है तो इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा ना। इट मीन्स सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। ये सारे पॉइंट्स आप जो है लर्न रखिएगा, इन्हीं की हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इन्हीं की हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मैं शॉर्ट ट्रिक में यहाँ पर वैल्यू आपके लिख देता हूँ, जिससे आप इसको राइट कर लीजिएगा और लर्न भी कर रखिएगा। फर्स्ट केस, इफ L is parallel to M, L is parallel to M, then corresponding angles are equal. Pair of corresponding angles are equal. Second, pair of alternate angles are equal. पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ये कंडीशन मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब इसी का आप रिवर्स में भी अगर चलोगे, इसी के रिवर्स में भी जाओगे तो ट्रू होगा। कैसे, अगर पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो क्या होगा, लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल में होगी। लाइन क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल में होगी। इफ़ L एंड M आर पैरेलल लाइंस एंड यहीं पर लिख देते हैं N इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, देन पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ये वाइस वर्सा होता है। ये क्या होता है, वाइस वर्सा होता है। इसका कन्वर्सली भी ट्रू होगा। इट मीन्स if pair of alternate angles are equal then the given lines are parallel to each other. If pair of corresponding angles are equal then the given lines are parallel to each other. ठीक है, and sum of co-interior angles is equal to 180 डिग्री। 180 डिग्री। और क्या केसेस आपको पता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। बस इन्हीं सारे पॉइंट्स के ऊपर ही पूरा एक्सरसाइज ही आपकी डन हो जाएगी। इन्हीं सारे पॉइंट्स के ऊपर ही आपकी पूरी एक्सरसाइज जो होगी डन हो जाएगी। ठीक, सो डियर स्टूडेंट्स, you should write these points in your fair copy and learn these points, and the division of these points in your book is given as a form of axioms and theorem. इसके जो पार्ट्स दिए गए हैं वो थ्योरम और एक्सम्स के फ्रेम में आपके बुक में दिए गए हैं, उन्हें आप राइट करिए, लर्न करिए।
Thank you for watching this video.